قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ سبھی حضرات جگے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، جگے ہیں؟ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ باہر کے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی قیمتی اور بہت ہی بہترین باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا میں لوں گا، اس کے بعد رخصت ہوں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں نے قرآن کریم نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کے سنایا آپ حضرات کو۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ذرا بولیے تو پتہ چلے کہ آپ لوگ جگے ہوئے ہیں۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کا نام ہر کوئی جانتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی تاریخ بھی سبھی کو یاد رہتی ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ دن میں کتنی تاریخ تھی؟ آج دن جو گزرا ہے کتنی تاریخ تھی؟ 8 تاریخ تھی۔ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کل 9 ہوگا اور پرسوں 10 ہوگا۔ کسی نے کہا تھا وہ تو دن ہے نہیں ہے، تو تاریخ کی بات آ گئی، دن کی بات۔ کسی نے کہا تھا بدھ کے دن کسی نے کہا کہ آج بدھ ہے، کل سدھ ہے، پرسوں خدم خود ہے۔ تاریخ پر نہیں سیٹ ہو رہا، اسی لیے میں نے دن پر سیٹ کیا، اگرچہ آج بدھ نہیں ہے، آج تو دن میں اتوار تھا، ابھی سوموار کی رات ہے۔ بہرحال یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ابھی مولانا سلیم الدین صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ سال بھر لوگوں سے بڑا اچھا ملنا جلنا رہتا ہے علماء کرام کا، لیکن جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں لوگ جیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہو گئے، مسلمان لگتا ہے کہ عالم کا دشمن ہو گیا۔ یہ مہینہ ہے، آپ اندازہ کرتے ہوں گے، سب کو پتا ہے یہی وہ مہینہ ہے۔ یہ مہینہ محرم کیوں رکھا گیا تھا نا؟ اس میں لڑنا جھگڑنا یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ پہلے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی نا، محرم کا مہینہ آتا تھا تو لڑائی بند رہتی تھی، اس میں لوگ نہیں لڑتے تھے، تو حرام کر دیا گیا تھا لڑائی کو۔ ہمارا مسلمان بھائی کیا کیا کہ حرام کر لیا مولانا صاحب کو اچھا سمجھنے کو، اس مہینے میں حرام سمجھ لیا اپنے اوپر ان کی بات کو ماننے کو، یہ اپنا نقصان ہے۔ محرم کیا ہے؟ محرم ہم لوگ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، جیسا کہ مولانا نے بتلایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی وجہ سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن کیسے کیا ہوا مختصر طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے گا کہ اس موقع سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر جاتے ہیں۔ 4 خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بہت سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنبھالے باغڈور، اسلامی حکومت کا بادشاہ بنے، تو اس وقت ان کے زمانے میں ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے غلط قسم کے لوگوں نے غلط حرکت کرنا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا، اور آج بھی وہ قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا دھبا بھی اس قرآن پاک پر لگا ہوا ہے، دنیا کے کسی ملک میں کسی میوزیم میں وہ رکھا ہوا آج بھی۔ تو وہاں سے معاملہ مسلمانوں کا بگڑنا شروع ہو گیا، وہاں سے مسلمانوں کا معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ وہ تو شہید کر دیے گئے،
ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی جید اور بڑے پائے کے صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیجئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی بدلہ نہیں لینا ہے، کچھ حالات کو درست ہونے دیجئے، اس کے بعد بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھتے تھے کہ دیر سے بدلہ لینے میں اچھا ہے، بھلائی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، جلدی میں بدلہ لینا اچھا ہے۔ دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی، جس کی وجہ سے جنگ کی نوبت آئی، اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، ہوتے ہواتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن چند ہی دنوں وہ خلیفہ رہ کر کے اور اس سے سبکدوش ہو گئے، یعنی چھوڑ دیا خلافت کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اسلامی حکومت کہ آپ ہی حکومت چلائیں، تاکہ جو مسلمان آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں یہ جھگڑا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو خلیفہ بنے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال کا جب وقت آیا تو انہوں نے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یزید خلیفہ بنے گا، میرے بعد یزید خلیفہ بنے گا۔ تو اسلامی حکومت میں وہ خاندانی ملکیت نہیں چلتی ہے، خاندانی بادشاہی نہیں چلتی ہے۔ اسلامی حکومت اسلام کے قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بادشاہ بنا، وہ مرا تو اس کا بیٹا بنے گا، وہ مرا تو اس کا بیٹا بنے گا، یہ طریقہ مذہب اسلام کا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ بنا دیے تو اس وقت یہ ہوا، حالانکہ ان کی نگاہ میں اس وقت جو حالات تھے اس کو سنبھالنے کا جو ملکہ یا سمجھداری تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ یزید ہی ہے، اس لیے اسی کو نامزد کر دینا، اسی کو خلیفہ بنا دینا، یہ مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں اچھا ہوگا۔ تو چنانچہ انہوں نے بنا دیا، لیکن یہ طریقہ تھوڑا سا گڑبڑ تھا، ان کے دل میں تو تھا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، صحابی تھے، ان کے عمل کو ہم خراب نہیں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جو کیا وہ یہ سمجھ کے کیا کہ مسلمان کا اور اسلام کا اسی میں بھلائی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ مذہب اسلام کے قانون کی خلاف ورزی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں سے بہت سارے اس بات کی مخالفت کرنے لگے کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، آپ یزید کو نامزد نہیں بنا سکتے، یعنی خلیفہ نہیں بنا سکتے، بلکہ مشورے سے جو طریقہ مذہب اسلام کا ہے اس کے حساب سے آپ کو خلیفہ کسی کو بنانا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ ان کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے، انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں جس انداز سے، جس طریقے سے یزید کو خلیفہ بنایا گیا وہ طریقہ غلط تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مخالفت کیا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتے اور اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو خلیفہ بنتا تھا یا بادشاہ ہوتا تھا تو تمام لوگ ان کے پاس جا کر کے اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم آپ کو خلیفہ مان رہے ہیں، اور باضابطہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے مصافحہ کرتے ہوئے یہ عہد و پیمان لیا جاتا تھا۔ اگر بادشاہ خود نہیں ہے تو کسی اپنے آدمی کو، ایلچی کو بھیجا جاتا تھا کہ تم جاؤ فلاں آبادی میں اور وہاں کے لوگوں سے میرے نام پر جو ہے بیعت لو، یعنی اس کو اقرار کراؤ، میرے ہاتھ پر نہیں ہو رہا ہے، تم کو میں بھیجتا ہوں،
तुम अपने हाथ से मुसाफा करो और उनसे इकरार करवाओ कि मुझको वो खलीफा मान ले। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे और चहेते नवासे यानी नाती थे। वो गलत कैसे देख सकते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुखालफत करते रहे। अभी जो कूफा है इराक के अंदर, उस कूफा ही में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया था। तो वहाँ के लोगों को हज़रत अली से हमदर्दी थी और यजीद की मुखालफत में थे वो लोग। यजीद के तरफ से जो गवर्नर वहाँ था वो ज़ोर ज़बरदस्ती उन लोगों से इकरार कराया हुआ था कि तुम यजीद को मान लो खलीफा, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इसके बावजूद कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बहुत सारे ख़त भेजे। ख़त का समझिए कि बड़ी लंबी फहरिस्त है, कितना तादाद में उन लोगों ने ख़त भेजा कि आप आइए और खिलाफत का बागडोर जो है संभालिए, हम लोग आपके साथ हैं, कूफा वाले आपके साथ हैं। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार नहीं हो रहे थे। जब बहुत सारे खतूत आ गए तो अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, उनके चचा का नाम अकील था, उनका बेटा मुस्लिम, उनको भेजा कि आप जाएं वहाँ कूफा और जाकर के वहाँ के हालात का जायज़ा लें कि क्या मामला है, वहाँ के हालात का जायज़ा लें कि क्या सही में वो लोग हमको बुला रहे हैं, हम पर जो है हमारे हाथ पर वो लोग बैत करेंगे, हमको खलीफा जो है मानेंगे और यजीद की मुखालफत करेंगे। तो इस खबर के लिए मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। वो अपने बेटों के साथ, छोटे छोटे 2 बेटे थे, उनको लेकर के चले, वहाँ पहुँच गए। नमाज का वक्त था, लोगों ने इनको खुश आमदीद कहा और उसके बाद इनके पीछे लोगों ने नमाज अदा किया। नमाज में मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, बहुत बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद थी। वो आबादी यानी नमाजियों से भरी हुई। तमाम लोगों ने उस मस्जिद के अंदर इकरार किया हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कि हम हज़रत हुसैन को खलीफा मान रहे हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं। बैत कर लिया। बाज़ रवायत के मुताबिक तकरीबन 12,000 की तादाद थी जिन लोगों ने बैत किया उस मस्जिद के अंदर। नमाज हुई। नमाज ख़त्म होने के बाद नमाज के दौरान ही यजीद के तरफ से ऐलान करने वाले ने ऐलान करवाया शहर के अंदर कि जो लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत हो रहे हैं उनकी खैर नहीं है, वो अपने बैत को वापस कर लें, वरना उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा और मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले करें। मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ ही रहे थे। सलाम जब फेरते हैं तो देखते हैं कि मस्जिद खाली हो रही है, मस्जिद खाली है। कहाँ चले गए वो वादा करने वाले कहाँ चले गए वो वादा करने वाले, कुछ पता नहीं था। ये छुप गए। और हुआ ये था कि जिस बैत करने के बाद इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ख़त भेज दिया कि यहाँ के हालात सब ठीक हैं, आप चले आइए। और इधर जो है किसी नमाज के वक्त देखा, जब ऐलान हुआ तो नमाज के दौरान ही लोग गायब हो गए। जब तक खत ले करके जाने वाला जा चुका था, इधर खबर हो गई है हुसैन को आने के लिए और इधर जब मुखालफत हो गई, लोग भाग गए इनके पीछे से, अकेला पड़ गए। किसी के घर में पनाह लिया इन्होंने, कोई पनाह देने वाला नहीं था, यानी बचाने वाला नहीं था। एक बूढ़ी औरत के घर में जाके जो है छुप गए, लेकिन वहाँ पता चल गया और गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद इनको शहीद कर दिया गया। इनके 2 बेटे जो छोटे छोटे थे उनका भी पता लगा करके उनको भी शहीद कर दिया गया। अब तो यहाँ मामला उल्टा हो गया। उधर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त पहुँच गया कि यहाँ हालात ठीक हैं, आप आइए। तो कुल 72 आदमी, बच्चे औरतें मिला करके कुल 72 आदमी वहाँ से रवाना हुए। मक्का आए। मक्का में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले खलीफा के नाती थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाती थे, वो भी यजीद की मुखालफत में थे और मक्का का गवर्नर बने हुए थे खुद ही।
और वो भी मुखालफत में थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का पहुँचे, मदीना से मक्का पहुँचे तो इन लोगों ने मना किया, मदीना वालों ने भी मना किया था कि आप सिर्फ अपने ख़ानदान वालों के साथ ना जाएं, बल्कि आपके साथ हम लोग फ़ौज दे देते हैं, फ़ौज ले करके आप जाएं। कूफा वालों पर भरोसा नहीं है, वो आपको धोखा दे देंगे, आपके अब्बा को भी धोखा दे चुके हैं, आपके भाई को भी धोखा दे चुके हैं, उनसे होशियार रहिए और मत जाइए वहाँ जाने से रुक जाइए। लेकिन वो वज़ीर थे, कहा कि नहीं, हमारे तो चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, ये मुस्लिम बिन अकील खबर भेजा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, इतने लोग हमारे हाथ पे बैत हो चुके हैं, मैं तो जाऊंगा ही। नहीं माने मदीना वालों की बातों को तो मक्का वाले रोकने लगे। मक्का जब पहुंचे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो रोकने लगे, और उनके रोकने पर भी बात नहीं बनी है, नहीं माने, वहाँ से रवाना हो गए। आगे बढ़ते गए, कूफा की तरफ बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इधर पता चल गया कि हज़रत हुसैन आ रहे हैं, हज़रत हुसैन आ रहे हैं। कूफा में जो यजीद का गवर्नर था, जालिम किस्म का इंसान था, इब्न ज़िया, वो क्या किया कि वो ऐलान, उसने फौज तरतीब दिया, फौज तरतीब दे करके फौज का इंतज़ाम किया और इंतज़ाम करके मैदान करबला के तरफ रवाना कर दिया। उससे पहले छोटा सा लश्कर, एक छोटा लश्कर का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको रवाना किया कि तुम देखो जा करके कि हज़रत हुसैन कहाँ तक आए हैं, और उनको अब भागने मत देना, उनको घेर के लाना। तो अब वो फौज का जो टुकड़ा था वो जाता था हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब, और वहाँ से फिर वापस आकर के बतलाता था कि ये हज़रत हुसैन फला जगह आ गए हैं। तो ये जंगी लोग थे, वो जंगी थे, जो वो चल रहा था हज़रत हुसैन की खबर को यजीद के गवर्नर के पास पहुँचा रहा था, वो जंगी था जो जा जा करके खबर लाता था। आज भी आप देखेंगे कि जब मुहर्रम की 10 तारीख होती है तो जंगी का ये काम होता है कि जो देखो वो फला ताज़िया कहाँ है, उसको लाएगा, इधर भी खबर पहुंचाएगा, यहाँ की खबर वहाँ पहुंचाएगा, या अभी वो ताज़िया फला जगह है, अब फला टाइम में ये होगा तुम वहाँ चलो। इनका काम जो है वो वही है। ये जंगी लोग, जंगी के औरतें, हमारे घर की औरतें जहालत की वजह से क्या करती हैं कि जंगी अपने बच्चों को बनाती हैं, उसके लिए कबूलती हैं, मन्नत मानती हैं और उसमें ढकेलती हैं। हालांकि वो जंगी कौन था? वो तो हज़रत हुसैन का दुश्मन था, जिसने हज़रत हुसैन का पता बतलाया यजीद के गवर्नर के पास जा करके, और फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि उसने रास्ता रोक दिया। हज़रत हुसैन जब वापस जाना चाह रहे थे तो उन लोगों ने रास्ता रोक दिया और उनको मजबूर किया मैदान करबला तक पहुंचने के लिए। लामोहल्ला मजबूर हो करके हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला पहुंच गए। तो ये जंगी जिसको हम और आप बड़ा अदब और ख्याल रखते हैं, और शहर शहर गांव गांव जो है मारा मारा फिरता है, ना जाने उससे क्या हज़रत हुसैन का भला होने वाला है। वो तो हज़रत हुसैन का दुश्मन है, उसका रोल, उसका पार्ट जो है ये लोग अदा कर रहे हैं। जहालत की मारी हुई इंसानियत समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह, किसी ने कहा है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक़लें छीन लेता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये घेर करके मैदान करबला में पहुँचा दिया और वहाँ कई दिन तक इनके ऊपर पानी वगैरह बंद कर दिया गया, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे, और फिर लड़ाई हुई, उस लड़ाई में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया, बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। इनके नज़र के सामने हज़रत अली असगर जब ये जिंदा थे, अभी शहादत नहीं हुई थी, एक एक करके जितने भी अफराद थे वो जा कर लड़ते रहे, शहीद होते रहे। और एक वक्त वो आया कि घर की औरतों ने कहा कि बच्चा अली असगर जो दूध पीता बच्चा है वो तड़प रहा है प्यास के मारे, इसको ले जाइए और दुश्मनों से कहिए कि दुश्मनी तुम्हारी हमसे है, इस बच्चे से नहीं है, तो तुम इस बच्चे को तो कम से कम पानी पिला दो। ये लेकर के हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के सामने पहुंचे और उन लोगों से कहा, ए लोगों, ये दुश्मनी तुम्हें हमसे है, इस बच्चे से तो नहीं है, ये प्यास से तड़प रहा है, देख लो, इसको तो कम से कम पानी पिला दो। उसके जवाब में उधर से एक तीर आया, हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में लगा, और उस गले में लगते हुए जो बाँह पे रखे हुए थे हज़रत हुसैन के बाँह में वो तीर घुसा और बच्चा तड़प करके इनके गोद में जो है जान दे दिया। जवान सा बेटा अली अकबर
जवान सा बेटा अली अकबर वो अब्बा के सामने जाता है, लोगों से लड़ता है और लड़ करके जो है शहीद हो जाता है। जवान बेटा है, बिल्कुल नौखेज बेटा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजरता होगा, अंदाज़ा कीजिए। 72 हज़रात शहीद हो गए, तकरीबन लड़ने वाले 72 थे। वो सभी जितने भी लड़ने वाले थे वो सब शहीद हो गए। आखिर में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतरे और उसके बाद मुकाबला हुआ। नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ने लगे। उसी दरमियान में जालिमों ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया, यानी आपको शहीद कर दिया। आपका सर काट करके नेज़े पे लगाया, भाले पे, और उसको जो है नारा लगाते हुए चल दिया कहाँ, मुल्क शाम की तरफ, जहाँ पे यजीद जो है तख्त पे मौजूद था, उसके दरबार में जाने लगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम और आप मुसलमान हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते, ये दोनों नवासे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन आपके पीठ पे सवार हो जाते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं हटते थे जब तक कि वो दोनों नाती पीठ पर से उतर ना जाते। इतनी ज़्यादा, जहाँ जाते गोद में उठाए जाते। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बेइंतहा मोहब्बत थी उस प्यारे नवासे को, उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को। भूखा प्यासा, कई दिनों का भूखा और प्यासा मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। और उस दिन को आज मुसलमान खुशी का दिन मना रहा है, उस दिन को आज मुसलमान त्योहार कह रहा है। उस दिन जो है तरह तरह से खुशियां मनाता है, ढोल ताशे और डीजे सब कुछ बजाता है, ना जाने क्या क्या खुराफात करता है। अक्ल दिमाग से ऐसा महसूस होता है कि अक्ल जो है छीन ली गई है। किसी ने कहा ना कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के दिलो दिमाग को छीन लिया। जैसे हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जिस नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, हम कैसे नबी के नाम लेवा है। हमें गैरत नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती, हमें ज़रा सा झिझक महसूस नहीं होता। कल को मैदान क़यामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे हम लोग। डीजे बजाने वाले, डंका पीटने वाले, लाठी खेलने वाले, तमाशा लगाने वाले और तमाशा देखने वाले, ये सब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम ही वो लोग हो, तुम ही वो लोग हो जिसने मेरे नवासे को जिस दिन शहीद किया गया था बेदर्दी के साथ, तुमने उस दिन को खुशी का दिन बना लिया, तुमने उस दिन को त्योहार बना लिया। जबकि हमारा हुक्म यह था कि शरीयत में त्योहार सिर्फ दो ही है, एक ईद है और एक बकरीद है। ये लोगों, तुमने क्या किया मेरे नवासे के साथ, मेरे नाती के साथ? ऐसा जुल्म तो कूफा वालों ने किया और तुम भी उस जुल्म में शरीक हो गए कि उस दिन को तुम खुशी का दिन मना लिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सोचिए, गौर कीजिए। जब से मेरी अक्ल हुई, हमने देखा कि उलमाए किराम मना करते चले आए कि ये शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो कुछ करते हैं हम लोग मुहर्रम की 10 तारीख को, मजहब इस्लाम में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। न कुरान में लिखा, न हदीस में लिखा, न बुजुर्गान दीन ने किया, न उलमाए किराम ने किया। किसी आलिम को आपने देखा डंका पीटते हुए? और किसी आलिम को आपने देखा जो है शराब पी करके उस दिन झूमते हुए? किसी आलिम को आपने देखा कि वो ताजिया उठा के जा रहा हो? या किसी आलिम को आपने देखा कि ताजिया के पर जो है चढ़ावा चढ़ा रहा हो? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये ताजिया तो मूर्ति है, ये ताजिया तो मूर्ति है। हम लोग तो उसे को जो है ख़त्म करने के लिए आए कि एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ और बुतों की इबादत को छोड़ दो। और हम हैं मुसलमान कहलाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं और उनके नवासे के दिन को जो है पर्व और त्यौहार मना रहे हैं। शर्म की बात है मेरे दोस्त और बुजुर्ग। जर्रा बराबर अल्लाह ताला ने दिमाग में अक्ल रखा है और सही सलामत है, तो इस मजलिस में तौबा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह कोई खेले तो खेले, कोई डंका पीटे तो पीटे, कोई डीजे बजाए तो बजाए, कोई नाच रंग की महफिल सजाए तो सजाए, न हम जाएंगे उस मजलिस में, न अपने घर की औरतों को जाने देंगे। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? इस महफिल का बायकाट करेंगे या सिर्फ मजलिस जमा करके और सुन करके जब फिर इधर से उधर कर देंगे?
ये महफिल भी मैदान क़यामत में दलील बनेगी। ये महफिल भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कि रामपुर वालों तुमने महफिल सजाई थी और उस महफिल के अंदर बहुत सारी बातें हुई थी, मुहर्रम के ताल्लुक से भी और दूसरी चीज़ों से भी, तुमने क्या उस पर अमल किया? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसलिए कोशिश कीजिए। बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया और न जाने कितना कुछ कहा गया, अनगिनत कहा गया, लेकिन हम हैं कि क्या कहा जाए। हमें कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी गुस्सा आता है, लोग बात नहीं मानते हैं तो ये कहना पड़ता है कि लगता है कि जैसे भैंस है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पजवाओ, ये हाल है। या फिर उस कुत्ते की जो है दुम है, कुत्ते की दुम है कि जो टेढ़ा होता है उसको मनो पत्थर के नीचे सालों साल दबा के छोड़ दिया जाए, उस पत्थर को हटाओ तो फिर टेढ़ा। यही हाल आज मुसलमानों का है, यही हाल मुसलमानों का है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। जुबान जब तक है, हम अपने यहाँ भी कहते हैं और आपके यहाँ भी कह रहे हैं और 10 साल आपके यहाँ कहते रहे, लेकिन आप लोगों ने कान नहीं धरा, आप लोग वही करते रहे जो जी में आया। लेकिन याद रखिए, उलमाए किराम की एक एक बात आपके सामने मैदान क़यामत में पेश किया जाएगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना जब लोग करेंगे वो पूछेंगे, कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, तौबा कीजिए, तौबा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नाती के शहादत के दिन को पर्व और त्यौहार मत बनाइए। उस दिन डीजे पर जो है नाचिए कूदिए नहीं, और उस जो है शराब और तारी का दौर मत चलाइए। ये मज़हब इस्लाम में इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के शुरू में सुनाया आप हजरात को। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गौर से सुनिए। बस मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ इस हदीस को, इस हदीस की मुख्तसर तशरीह करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, तुम में से जो कोई भी बुरा होता हुआ देखे, किसी को बुराई करता हुआ देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, कहीं पे गलत होता हुआ देखे, फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर उसको ताकत हो हाथ में तो हाथ से रोक दे। कोई बुरा हो रहा है, अगर किसी के हाथ में ताकत है तो वो हाथ से उसको रोक दे। और फइल्लम यस्तति, अगर हाथ में ताकत नहीं है तो फबिलिसान ही, जुबान से कहो, जुबान से मना करो। अल्लाह ताला ने हम लोग को अभी जुबान में ताकत दिया है, अभी जुबान में ताकत दिया है, और जब तक जुबान में ताकत रहेगी इंशाअल्लाह इस मुहर्रम को बुरा कहते रहेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। लोग माने तो भी भला, न माने तो भी हमारे लिए भला, उनके लिए जो होगा सो वो जाने। इसलिए तो फरमाया अभी जुबान में ताकत है, आप लोगों को भी कह रहा हूँ, ये गलत होता है, नाजायज होता है, हराम होता है। घर की औरतें जाकर मेलों में जो है जाती हैं, उनका निकलना भी उस मौके से हराम, आपका मेला लगाना भी हराम, उसमें उस मेले में लाठी खेलना भी हराम और उसमें तमाशा देखना भी हराम। इन चीज़ों से बचिए, बचने की कोशिश कीजिए। तो ये अभी जुबान में ताकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जुबान से रोको, और फरमाया फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, और अगर तुम जुबान से भी नहीं कह सकते हो, डर है कि लोग मारपीट करने लगेंगे, तकलीफ पहुंचाने लगेंगे। अभी तो हम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन जैसा माहौल बन रहा है, जैसा मौलाना ने अभी बतलाया, मौलाना सलीमुद्दीन साहब रहमानी ने, कि वो दिन दूर नहीं, मुमकिन है कि कहीं लोगों का जो है हाथ भी ना हम लोगों के ऊपर चल जाए। तो बहरहाल वो अपनी आखरत बनाएंगे, हम लोग अपनी आखरत बनाने की फिक्र में हैं। तो अगर जुबान में ताकत ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फबिक़ल्बिही, कि अगर जुबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा मान लो। दिल से बुरा मानने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरा भी मान रहे हैं और उसमें जा भी रहे हैं। शादी ब्याह का में जो है कौन आदमी जो है तिलक लेने को हराम नहीं समझता है, सब समझता है हराम है। जहेज मांगना हराम है, तिलक मांगना हराम है, सब समझता है, दिल से बुरा मानता है। हालांकि जुबान से ताकत से बोल सकता, नहीं बोलता है। कुछ लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं लेकिन बुरा समझते हैं, दिल में बुरा समझते हैं, लेकिन साथ साथ जाकर खा भी लेते हैं, जब बारात भी चले जाते हैं, सब कुछ शरीक हो जाते हैं। तो ये बुरा मानना नहीं हुआ। दिल से फरमाया कि अगर तुम नहीं रोक सकते हो तो दिल से बुरा मान लो,
दिल से बुरा मानो, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कम दर्जा है, कम बिल्कुल मामूली दर्जा। अगर दिल में भी बुरा नहीं मान रहा, समझो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बुरा भी मानिए, तो बुरा मानने का ये मतलब नहीं कि बुरा दिल से मानिए या साथ भी जाइए, मेला भी देख लीजिए, थोड़ा लाठी भी खेल लीजिए, थोड़ा डंका भी पीट लीजिए, यह तरीका गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया इस हदीस के अंदर, कहीं भी बुरा होता हुआ देखो, हाथ से रोको, हाथ में ताकत ना हो, जुबान से रोको, जुबान में ताकत ना हो तो फिर बोलिए दिल से बुरा मान लो, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। इसके बाद फिर ईमान सलामत नहीं रह सकता, ईमान बाकी नहीं रह सकता। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें और आपको, इस तमाम मुसलमानों को इन चंद बातों पर कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।